नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आर यू डूइंग योर स्टडीज फ्रॉम होम? सो टुडे इट इज़ योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 5th, chapter 1, and chapter name is Evolution of Computer part 1. ओके, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे क्लास 5, chapter 1, and chapter name है Evolution of Computer. So in today's class we are going to discuss about history of computer, next about abacus, about Napier's bone, the Pascaline, difference engine, analytical engine, and so on. ओके, तो ये सब वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो. एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, जिस वीडियो को देख के आपको और अच्छे से ये सब समझ में आएगा, और I will also discuss it with you. So here is the video. Kids, please listen this video carefully, and after that I will make you understand the topic. So please listen carefully. Jenny, computers can do so many wonderful things. Do you know who invented it? Jim, Charles Babbage was the inventor of the first computer, but the one he invented looked nothing like the one we have today. How did it look like back then? It looked more like a device with gears and wheels. Let me tell you more about the history of computers. So यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने जिसको बनाया था. सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने. और चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था या जो कंप्यूटर बनाया था, वो वैसा नहीं था जैसा कंप्यूटर हमें आज दिखाई दे रहा है. वो उससे बहुत डिफरेंट था. जो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था उसमें गियर्स थे, व्हील्स थे, और वो आज के जो कंप्यूटर है उससे बहुत अलग था. तो हम आज कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से बनाया गया. सो लिसन केयरफुली. In today's time, computers are used for various personal and professional tasks. They are versatile and can perform various functions at the same time. The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. Although the function of the present-day computer is not limited to do just calculations, the early developments were used for this sole task. So the word computer is derived from the word compute, which means to calculate. तो जो compute word है वो कहाँ से आया है? वो आया है कैलकुलेटर से. और कैलकुलेट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का कैलकुलेशन करना. तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है कंप्यूट वर्ड से. और कंप्यूट वर्ड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि टू कैलकुलेट, मतलब किसी भी चीज को कैलकुलेट करना. हालांकि आजकल जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो और भी बहुत सारे काम करते हैं. इन टुडेज डेज कंप्यूटर्स आर वर्किंग मोर देन अ कैलकुलेटर. तो पहले जो कंप्यूटर होते थे वो सिर्फ एक ही वर्क एक टाइम में किया करते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. Various devices were invented over a period of time to calculate numbers and equations. Let us look at some of them. The abacus was the first counting device. Its invention marks the development of computers.
It was the first mechanical device used for calculation. It was developed in China. It had beads on strings or rods mounted inside a wooden frame. The abacus did not automatically count. A person had to use the beads and rods to count. It was also used for addition, subtraction, multiplication, and division. The Pascal. So, abacus. Abacus was the first counting device, began the journey towards the development of computer. कंप्यूटर की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या बनाया गया? एबाकस बनाया गया. एबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस यूज हुई थी उसे एबाकस बोल सकते हैं आप. और एबाकस कहाँ डेवलप हुई? इट वाज डेवलप्ड इन चाइना. Division. ओके. एंड सबसे पहले जो एबाकस बना वो एक ऐसा बोर्ड था जिसमें स्ट्रिंग्स थे, रोड्स थे और वुडन फ्रेम था. वुडन फ्रेम के अंदर जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर की एक वुडन फ्रेम है और उसके अंदर बहुत सारे बीड्स लगे हुए हैं. और ये बीड्स किस यूज होते थे? टू कैलकुलेशन, like for addition, for subtraction, for multiplication and for division. So addition, subtraction, multiplication और division के लिए इन beads का यूज करके ये एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका यूज सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था. सो इट वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस एंड द जर्नी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर जो बनाए गए हैं तो उसका जो फर्स्ट इन्वेंशन था वो था एबाकस. ओके. The Next one Pascaline is- or the arithmetic machine was invented by Blaise Pascal in 1642. Pascal developed this machine because he wanted to help his father with his work as tax receiver. This device had wheels, gears, and dials. The user simply has to enter numbers using the dials to add or subtract them. सो नेक्स्ट मशीन जो है वो है पास्कलाइन, जिसको हम अरिथमेटिक मशीन भी बोल सकते हैं. पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल. ब्लेज पास्कल ने इसे इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम पास्कलिन है. और इसका इन्वेंशन हुआ था 1642 में. And Pascal developed this machine because he wanted to help his father in the collection of taxes. पास्कल ने इसे डेवलप किया था अपने फादर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो अपने फादर की हेल्प करना चाहते थे टैक्स को कलेक्ट करने में. और ये जो डिवाइस है इसके अंदर व्हील्स थे, गियर्स थे, डायल्स थे. ठीक है. एंड दिस डिवाइस कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नंबर एंटर्ड बाय मैनिपुलेटिंग इट्स डायल्स. तो ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये एक इस तरीके की मशीन थी जिससे आप एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे. और इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1642 में, मतलब आज से बहुत साल पहले. ठीक है. सो द यूजर सिंपली हैज टू एंटर नंबर यूजिंग द डायल्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. इसमें सिंपल यूजर को एक नंबर ऐड करना पड़ता था और डायल का यूज करके उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. तो दिस वाज द मशीन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है. विच वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल. Napier's bones was invented by a Scottish mathematician and scientist named John Napier. He was born in 1550 and died in 1617. This device helps you to multiply numbers. It has 9 different bones or strips with numbers on them. It is used to multiply a long number by a single digit number. Okay.
So next machine was Napier's bonds, and this was developed by John Napier. Okay, and this device help to multiply numbers. ये जो डिवाइस है ये इस तरीके की दिखाई देती थी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस डिवाइस का यूज करके इसे किसने डेवलप किया था? जॉन नेपियर ने, ठीक है। और इस डिवाइस का यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता था नंबर्स का। देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप्स विद नंबर्स ऑन देम। इसमें 9 डिफरेंट स्ट्रिप्स थी, या आप उसे 9 डिफरेंट बोन्स बोल सकते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प लेके मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया जाता था। इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई अ लॉन्ग नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी बहुत लॉन्ग नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए ये डिवाइस जो है ये हेल्प किया करती थी। Mathematician named Charles Babbage, who was considered as the father of computer, invented the difference engine in 1822. The difference engine was used to solve mathematical equations called polynomials. The machine worked by substituting multiplication and division with addition and subtraction. The difference engine consists of several columns numbered from 1 to n. The engine is programmed by setting initial values to the columns. The analytical engine was invented by Charles Babbage in 1833. Next machine was difference engine. Difference engine was developed by Charles Babbage. चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाया था, और कब बनाया था? 1822 में बनाया था। एंड इट वाज एन एक्चुअल मशीन वाज नेवर असेंबल्ड। डिफेंस इंजन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कंप्लीट डिजाइन of an automatic calculating machine created to compute mathematical tables. तो ये जो मशीन थी इसे बोला जाता था डिफरेंस इंजन, और इसे इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। एंड इसमें क्या होता था? इसमें ये फर्स्ट मशीन थी जो एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है, जिसे मैथमेटिकल टेबल जिससे कंप्यूट की जाती थी, जिससे हम मैथमेटिकल टेबल्स जो है वो बना सकते थे। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग अ सीरीज ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ टेबल ऑटोमेटिकली। इट मीन्स कोई भी सीरीज है, अगर हमें किसी भी तरीके की सीरीज प्रिंट करनी है, लाइक 2 की टेबल इज द सीरीज ऑफ 2 देन 4 देन 6 देन 8, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस से एक सीरीज बन रही है जो कि 2 की टेबल में है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसी मशीन थी जिससे ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू देके उसकी सीरीज को बनाया जा सकता था। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, हु is the father of computer. Okay, so and this also worked by substituting multiplication and division with addition and subtraction. Okay, so next one is the analytical engine was invented by Charles Babbage in 1833. The analytical engine was considered as the first general purpose computer. It had 5 units called the input, output, store, mill, and control. Input was provided through punched cards. Store was used for storing the data, and mill was the calculating unit. Control was used for supervising other units. This device laid the foundation of computers that were further developed to give us the modern computers. So next device was analytical engine. Analytical engine was also invented by Charles Babbage in 1833. 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था।
and after improving on the capabilities of the difference engine, और यहाँ पे जब चार्ल्स बेबेज ने ये एनालिटिकल इंजन बनाया था तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव किया था जो कि डिफरेंस इंजन में नहीं थी, जो हमने इससे पहले देखा है। वो भी चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें नहीं थी। उनको इम्प्रूव करते हुए चार्ल्स बेबेज ने अगेन 1833 में एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। एन एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ये जो 5 यूनिट्स थी ये थी एनालिटिकल इंजन में: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। एंड इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स। कुछ पंच कार्ड्स होते थे जिसके थ्रू मशीन को इनपुट प्रोवाइड किया जाता था। और स्टोर वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। और स्टोर क्यों यूज होता था? डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर यूज होता था। एंड मिल वाज द कैलकुलेटिंग यूनिट ऑफ कंट्रोल वाज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग अदर यूनिट्स। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मिल का यूज होता था। एंड आउटपुट वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रिंटिंग अपर्चर्स और विद पंच कार्ड्स। और जो प्रिंटिंग थी, आउटपुट जो था वो प्रिंटिंग के लिए यूज होता था, और जो प्रिंट आउटपुट था वो पंच कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता था। सो दीज ऑल आर द 5 यूनिट्स ऑफ एनालिटिकल इंजन: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। और इन सबका अपना अपना अलग अलग वर्क था। An analytical engine introduced a number of computing concepts and laid the foundation of computers that were further developed to give us the modern computer. तो जो कंप्यूटर हमें आज मिले हैं, जो कंप्यूटर हम लोग आज यूज करते हैं, उसका जो फाउंडेशन था वो एनालिटिकल इंजन से स्टार्ट हुआ था। मतलब आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो उन्हीं एनालिटिकल इंजन्स को फर्दर डेवलप करके जो रिजल्ट प्रिपेयर हुआ, दैट इज व्हाट जो कंप्यूटर हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स सबसे पहले एबाकस बना, देन उसके बाद पास्कलिन, डिफेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, नेपियर बोन्स। तो ये सब स्टेजेस को क्रॉस करके जो कंप्यूटर हमें आज मिल रहा है वो प्रिपेयर हुआ। So now next one is there are some fun facts. ये जो है लेडी अगस्टा एडा, ये फर्स्ट इंग्लिश मैथमेटिशियन थी जिन्होंने सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर वर्क किया, जो कि फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी। एंड इन्होंने ही सबसे पहले बाइनरी का यूज करने का सजेशन दिया डेसिमल की जगह पे। पहले क्या होता था, डेसिमल नंबर से यूज होते थे, और ये फर्स्ट ऐसी प्रोग्रामर थी जिन्होंने बाइनरी डेटा को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये इन्होंने किस पे वर्क किया था? इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसी पे इन्होंने आगे वर्क किया था। Let's Okay. recollect what we have learned So, in this now- module. The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. The abacus was the first counting device. The Pascaline, or the arithmetic machine, was invented by Blaise Pascal in 1642. Napier's bones was invented by a Scottish mathematician and scientist named John Napier. A British mathematician named Charles Babbage, who was considered as the father of computers, invented the difference engine in 1822. The analytical engine was invented by Charles Babbage in 1833. So students, it's recollect कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है
टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग होता है। एंड देन हमने पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि सबसे पहले इन्वेंशन हुआ एबाकस का, एंड एबाकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस बिगन द जर्नी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डेवलपमेंट की जर्नी का जो फर्स्ट डिवाइस था वो था एबाकस। एबाकस फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस थी। देन Napier's bonds was invented by जॉन नेपियर। और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है ये जो लॉन्ग नंबर्स होते थे उन्हें सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करने में काम आती थी। इट्स ऑल्सो अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट इज द पास्कलिन। पास्कलिन जो है वो ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसका इन्वेंशन किया था। और ये जो डिवाइस है इसको पास्कल ने बनाया था टू हेल्प हिज फादर इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये जो डिवाइस थी इसमें कुछ व्हील्स होते हैं, गियर्स होते हैं एंड डायल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया था 1822 में। और इसमें ये फर्स्ट ऐसी कंप्लीट ऑटोमेटिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसमें किसी भी कोई भी आप वैल्यू अगर देते हैं तो उसकी सीरीज ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट में टेबल के फॉर्म में मिल जाती थी। सो डिफरेंस इंजन वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833 एंड इसमें चार्ल्स बेबेज ने वो उन सारी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया था जो उन्होंने डिफरेंस इंजन में नहीं किया था। या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस इंजन में जो भी कमियां रह गई थी उसे इम्प्रूव करके चार्ल्स बेबेज ने अगेन 1833 में एक नया डिवाइस प्रेजेंट किया था जिसे हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। सो दिस वाज द रिकलेक्ट फॉर टुडे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। नाउ इट इज क्विज टाइम। सो हियर इज अ क्विज। So question number 1 is abacus was used for addition, subtraction, multiplication and division. So it is true or false? So the answer is true. Let's submit it. Yeah, that's right. So it's a right answer. Continue. Now next question is the dash was considered as the first general purpose computer. So first general purpose computer was analytical engine. Okay, it was the first general purpose computer. So click on submit. Let's see. Yeah, that's right. The analytical engine was considered as the first general purpose computer. Next, click on continue. Then Charles Babbage is considered as the father of computer. So true or false? Yeah, it's true. Click on submit. Yeah, that's right. So this was the quiz for today. These all are the topics which we have discussed today. Now here is some checkpoints which I will give in your class group. आपके क्लास ग्रुप में आपको कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो दिए जाएंगे। आपको वो जो चेक पॉइंट हैं वो अपना नोटबुक में करनी है। आपको नोटबुक में उसे करना है विद आंसर्स। आपको ये चेक पॉइंट्स जो है मैं क्लास ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द remaining chapter in next class. Till then, stay healthy, stay safe and